वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश टेक चैनल पे। जैसे कि आज हमारे साथ पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के प्रिंसिपल सर डॉक्टर हरीश तिवारी सर जुड़े हैं। हम चाहते थे कि सभी बच्चों को जो सीईटी पास आउट होने के बाद जो एडमिशन में जो दिक्कतें आने लगती है, प्रॉब्लम्स आने लगती है, ऐसे टाइम पे बच्चों को गाइडेंस होना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि आपको पता है कि मैंने टॉप 20 कॉलेज ऑफ महाराष्ट्र में पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम लिया था, याद होगा। तो उसी कॉलेज के प्रिंसिपल सर डॉक्टर हरीश सर हमारे साथ यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। सर, सबसे पहले आपका कॉलेज का इंट्रोडक्शन, पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए सर। Good morning, sir. Thank you very much for giving me this opportunity to join your session. You are doing a very nice job to facilitate the students about the admission process as well as about the information regarding the college, because this is the time the students are very confused and they need lot of you can say questions to be answered, and there is lot of confusion everywhere. Is it okay English or okay sir, English, Hindi, no problem, as you wish. So this is the time when lot of questions are there which students are thinking about. For example, which college to be selected, then what should be the branch I should join for, and then there are many n number of questions are there, and lot of information is also available, but students get confused. So this is definitely a very welcome move by you. So I congratulate you and your team for doing this nice job. So as far as my college is concerned, we are Pimpri Chinchwad Education Trust. This is a well-known brand of education in Pune University as well as all over Maharashtra. So this is a, you can say, trust-driven college, that is Pimpri Chinchwad Education Trust. It was started around 28 years back by SB Patil sir, and under this umbrella there are 7 institutes directly plus 2 more engineering colleges are also there. They joined recently 2 years back. They are also under our administration as well as academic and training and placement support. So there are 9 institutes you can say. Out of that, the first one is Pimpri Chinchwad College of Engineering. Another engineering college is there, that is Pimpri Chinchwad College of Engineering and Research. I represent Pimpri Chinchwad College of Engineering and Research. As rightly told by you, we are among the top, you can say, top colleges, not even 20, but I say that in Pune University, we are among the top 5 colleges at the university level. And this is because of the blend of academics, then research and development, training and placement. We are known for training and placement and the overall development of the student. The kind of atmosphere that you will be getting in the college that builds the overall personality, and as a result of that, the students are getting very nice placement. During this, you can say, pandemic also, our placement is more than 70%. Even in computer, in computer department, the placement is more than 90% with a very good package. That is possible only because of the dedicated staff and the overall, we can say, development of the student. So that kind of environment is maintained in our college. Academically also, our results are among the top 3, top 5 colleges at the university level. Then placement wise, I just told you. Then research and development and research and innovation. Sir, I would like to tell you that just a few days back, I was watching a presentation from the AICTE chairman, and when I saw that the top 10 institutes of India, then we are also, as far as the number of patents filed are there, we are at the top 10 at the national level. That is a very good achievement. Lot of product development activities are going on. So many things are there. Yes, sir. Please. सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी स्टूडेंट का रिजल्ट लगने वाला है, जैसे सीईटी का, आई थिंक मुझे लगता है नवंबर के सेकंड वीक में एक लगने के चांसेस है एज पर माय व्यू। तो रिजल्ट लगने के बाद ये जो स्टूडेंट होते हैं तो उन्होंने क्या क्या करना चाहिए? हाँ सर, ये एक्टिविटी रिजल्ट लगने तक राह देखने की बजाय रिजल्ट का एक अंदाज तो बच्चों को होता ही है, अभी से शुरू करनी चाहिए।
इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, कॉलेज स्पेसिफिक और दूसरा ब्रांच स्पेसिफिक। तो पहले सबसे पहले बच्चों को ये डिसाइड करना है कि उनको करना क्या है आगे। सिर्फ इंजीनियरिंग तक न सोचते हुए आगे का 10 साल का करियर कम से कम प्लान करना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली ही विश टू डू। देयर आर नॉर्मली 3 टाइप्स ऑफ ऑप्शन। एक तो बच्चों को हायर स्टडीज के लिए जाना है, दूसरा बच्चों को ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के लिए जाना है, तीसरा बच्चों को आजकल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाना है। इवन हम आईआईटीज में भी देखते हैं कि मोर देन 30-40% बच्चे आजकल एंटरप्रेन्योरशिप के करियर ऑप्ट करते हैं। तो हमको एग्जैक्टली क्या करना है उस हिसाब से हमको ब्रांच चुनना है। अभी ऐसा चल रहा है कि भेड़ चाल के हिसाब से सारे बच्चे कंप्यूटर में जाना चाहते हैं। कुछ दूसरे भी ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे भी इस साल कम से कम 50 कॉलेजेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये ब्रांच ऐड हुई है, डीप लर्निंग ऐड हुई है। तो थोड़ा इनका अभ्यास करना चाहिए कि व्हाट आर द एक्चुअल कंटेंट्स ऑफ दिस ब्रांचेस। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स में कंटेंट क्या है और मुझे मेरा करियर क्या प्लान करना है, कि वो हिसाब से फिर मुझे इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच सूट करती है कि नहीं करती। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल बच्चों के दिमाग में हायर स्टडीज का भी होता है, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी एक करियर ऑप्शन होता है, जैसे कि यूपीएससी में जाना है। तो और यूपीएससी व्हाट शुड बी द ब्रांच आई सिलेक्ट। Yes, so if suppose I am not selected in UPSC, then there should be other career options available which are at par with the UPSC option. तो ये इसका पढ़ाई अभी रिजल्ट लगने की राह ना देखते हुए अभी से आपको करके थोड़ी तैयारी करनी चाहिए। फर्स्ट पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए, टीचर्स से डिस्कस कीजिए, एक 5-6 कॉलेजेस अपने आसपास के जाके फिजिकली विजिट कीजिए, कॉलेजेस में किस तरह की एक्टिविटीज होती है वो देखना चाहिए। महाराष्ट्र लेवल पे हम अगर बात कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटीज के बारे में भी देखिए, यूनिवर्सिटी में क्या अंतर है वो देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी यूनिवर्सिटी का रिकॉग्नाइजेशन अच्छा है, एनआईआरएफ रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, उसका भी थोड़ा सा अभ्यास कीजिए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर ढूंढना है और फिर वो हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। सो दैट शुड बी द अप्रोच ऑफ द स्टूडेंट। सर अभी वैसे देखा जाए तो बच्चे के मन में सबके होते कि मुझे सीएस ब्रांच मिलना चाहिए, ये ब्रांच मिलना चाहिए। आपको सीएस के अलावा कौन कौन से ब्रांच बच्चे के लिए आप मतलब सजेशन करना चाहते हो, मतलब कि ये ब्रांच भी अच्छी है, ऐसे कुछ दे सकते हैं क्या, सजेशन दे सकते हैं क्या स्टूडेंट को? हाँ सर, अभी कंप्यूटर साइंस में बच्चों का क्या फर्स्ट प्रेफरेंस नॉर्मली कंप्यूटर साइंस ही होता है, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आईआईटी। लेकिन वो कैसा है कि सबको देख के डिसीजन मत लीजिए। वही मैं कहना चाहता हूँ कि सबको कंप्यूटर सूट नहीं करेगा, कुछ बच्चों को अलग टाइप का फील्ड जॉब करना सूट करता है। अभी हम थोड़ा सा माहौल देख के कंप्यूटर साइंस के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा 10 साल का करियर सोचिए कि 10 साल के बाद क्या होता है। नॉर्मली कंप्यूटर साइंस में एक प्रॉब्लम होता है कि अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करते रहे तो 40 साल की उम्र तक ये एब्सोल्यूट। और बहुत सारे आपको दिखेगा कि 40 साल की उम्र में लोग बोलेंगे मैंने छोड़ दिया, मुझे ये करना था, वो करना था। सब झूठ है कि because as they are not being able to update themselves, they are being thrown out of the system. So this may happen, and that's why selection of your career, selection of your branch is very very important. Other branches are there, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में डेवलपमेंट काफी हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आज की तारीख में इंडिया इज इंपोर्टिंग अ वेरी ह्यूज एज कंपेयर टू व्हाट वी आर एक्सपोर्टिंग। सो देयर इज अ ट्रिमेंडस पोटेंशियल और इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी अच्छी है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। मैकेनिकल इज ऑलवेज एन ओवरग्रीन ब्रांच। मैकेनिकल कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, क्योंकि मैकेनिकल इज अ ब्लेंड ऑफ ऑल दी ब्रांचेस। आपको बहुत सारे पोजीशन में इवन कंप्यूटर साइंस में भी बहुत सारे हाई पोजीशन पे लोग मिल जाएंगे जो उनका बेसिक बैकग्राउंड मैकेनिकल है एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। बिकॉज मैकेनिकल करने से जो लॉजिक डेवलप होता है बच्चों का और जो सेल्फ लर्निंग या एवर लर्निंग अप्रोच जो डेवलप होता है वो उनको हमेशा लाइफ लॉन्ग काम में आता है। सिविल इंजीनियरिंग भी अच्छी ब्रांच, जिनको कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना है या जिनको यूपीएससी एमपीएससी या पब्लिक सेक्टर में जाना है उनके लिए बहुत अच्छी ब्रांच है। सो डेफिनेटली सर ऑल अदर ब्रांचेस आर गुड। सिर्फ आपको एम ये करना है कि मुझे क्या सूट करता है, वो हिसाब से ब्रांच करनी चाहिए। तो सर आपने बहुत सारा गाइडेंस किया स्टूडेंट को, और मैं चाहता हूं कि सर आपके यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस है ये एक्सप्लेनेशन करना है, और थोड़ा सा सर आपको पीछे हटना है थोड़ा सा। ओके सर, थोड़ा पीछे हट जाए आप। ओके सर, हाँ प्लीज सर, आपके यहाँ पे कौन कौन से ब्रांचेस है और कितने सीट्स अवेलेबल है आपके कॉलेज में,
थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है सर आपको शॉर्टकट में। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। हमारे कॉलेज में बेसिकली 4 ब्रांचेस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड सिविल इंजीनियरिंग। कंप्यूटर में हमारा इंटेक जो है वो 120 है, बाकी तीनों भी ब्रांच में हमारा इंटेक 60 का है। हमारा कॉलेज का मेरिट के हिसाब से भी देखोगे तो लास्ट ईयर हमारा कंप्यूटर साइंस का मेरिट साधारण 7th-8th पोजीशन पे था। हमारे सर ने गायकवाड़ सर ने बुक भी पब्लिश की, उसमें सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। और ये सब ब्रांचेस है। प्लेसमेंट में कंप्यूटर में डेफिनेटली अच्छी प्लेसमेंट है हमारे यहाँ पे। एज फार एज आवर कॉलेज इज कंसर्न, मैकेनिकल और ईएनटीसी का प्लेसमेंट इज आल्सो मोर देन 70-75%। मैकेनिकल में हमारा मेरिट भी अमॉन्ग द टॉप 10। सिविल इंजीनियरिंग में हम टॉप 5 में आते हैं। सो दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल एज फार एज आवर कॉलेज इज कंसर्न। हमारा जो एल्डर कॉलेज है पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वहां पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको एडिशनल ब्रांच मिल जाएगी, बाकी की 4 ब्रांचेस कॉमन है। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन। सर जेडब्ल्यू के थ्रू आपके यहाँ पे कितने सीट्स अवेलेबल होते हैं? जेडब्ल्यू का जो नॉर्मल स्टेट का कोटा होता है वही हिसाब से भी हमारे यहाँ पे भी सीट्स अवेलेबल होती है। उसके बारे में मेरे ख्याल से सारडा सर आपको ज्यादा अच्छे से बताएंगे। बट जेडब्ल्यू की सीट्स कम होती है एज कम्पेयर टू सीईटी। अभी ये प्रोसेस एडमिशन की शुरू हो जाएगी, उसके बाद में कुछ चीजें और भी शायद रिडिफाइन हो सकती है। ओके, तो सर जैसे कि आपने अभी सारडा सर का जो भी नाम बताया, तो आपने बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा मतलब इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दी कि हाउ टू चूज द अपनी जो ब्रांच है, ब्रांच कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपका करियर किस में है। तो बहुत ही अच्छा लगा सर, आपने विजिटिंग इतना टाइम दे दिया और इतने बच्चों को गाइडेंस करने की आपने कोशिश। जस्ट विद योर परमिशन एक चीज ऐड करूंगा, जो बच्चों को रिसर्च में इंटरेस्ट है उनके लिए हमारे कॉलेज में थोड़ा सा एडिशनल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। बिकॉज महाराष्ट्र में, नॉट ओनली इन महाराष्ट्र, प्राइवेट कॉलेजेस में ऑल ओवर इंडिया सबसे ज्यादा पेटेंट रखने वाला कॉलेज ये हमारा कॉलेज, यानी सबसे ज्यादा पेटेंट रखने वाले टॉप कॉलेजेस में हमारा है। हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बहुत सारा काम करते हैं। हमने पेटेंट के फील्ड में अभी तक के 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। सबसे ज्यादा कांग्रेचुलेशन सर आपका सबसे पहले। So that can be a very very good opening for all the students who are interested in research and innovation. तो थैंक यू सर, आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है बच्चों को और बहुत ही अच्छा लगा। और इतना टाइम मतलब आपका महत्वपूर्ण टाइम है, और ये महत्वपूर्ण टाइम हमारे चैनल के लिए, हमारे स्टूडेंट के लिए, हमारी फिजिक्स ज्ञान फैमिली के लिए दिया आपने। बहुत ही अच्छा लगा सर और बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दी। अगर कुछ हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम आपको कांटेक्ट भी करेंगे, और बच्चे का अगर बहुत सारे रिक्वायरमेंट आती है तो और एक इंटरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हमारे साथ अभी डॉक्टर हरीश तिवारी सर कनेक्ट हुए थे, PCCOE कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उसके बाद में अभी जो प्रोफेसर हैं हमारे महेश सारडा सर हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले सर आपका इंट्रोडक्शन दे दे। थैंक यू वेरी मच मुकेश सर। मेरा नाम महेश सारडा, मैं पिंपरी चिंचवड इंजीनियरिंग एंड रिसर्च 10 साल से 2015 में ज्वाइन किया है मैंने, और मेरा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, वो पढ़ाता हूँ। सर अभी फिलहाल में क्या है कि नियर अबाउटली एक आसपास बोल रहा हूँ मैं ऐसे कि 2nd वीक तक हमारा एक रिजल्ट लगने के चांसेस है सीईटी का 2020 का। क्या हो जाता है सर कि बहुत सारे बच्चों की कॉलेजेस कौन कौन से सेलेक्ट करना है, कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करना है, एडमिशन प्रोसेस क्या क्या होती है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए, उसके लिए फैसिलिटी सेंटर मतलब क्या, उसके बाद में ईवीएस मतलब जो ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट होते हैं कैटेगरी के होते हैं, कुछ ओपन के होते हैं, उनके लिए भी कुछ फीस के बारे में, बच्चे को कम फीस होना चाहिए इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देना है ताकि सभी बच्चे को, महाराष्ट्रियन बच्चों को फायदा हो सके। यही हमारा उद्देश्य है सर आज के लाइव सेशन का। तो प्लीज सर आप सभी चीजें 1 by 1 पॉइंट टू पॉइंट सभी बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे सर। तो प्लीज सर स्टार्ट करो। यस सर, थैंक यू सर। पहली बात तो कैसा है कि जिन स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, ठीक है ना, तो उनको पहले तो फ्लो में आना है। फ्लो में मतलब कि उनको सीईटी एग्जाम देना है, जेडब्ल्यू एग्जाम देना है, ठीक है। तो फिर जब अभी सीईटी एग्जाम के रिजल्ट्स लगेंगे तो फिर रिजल्ट लगने के बाद उनको एक वेबसाइट फॉलो करनी है जो कि इंजीनियरिंग के लिए है, मतलब जो सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस है कैप थ्रू, जो कि डीटी की वेबसाइट है, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन।
तो वेबसाइट का नाम है www.dtmaharashtra.government.in, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। इसके ऊपर आपको प्रीवियस कॉलेजेस के कट ऑफ लिस्ट भी मिलेंगे। मतलब जैसे कि आपका सीईटी का रिजल्ट लगता है, उसके बाद आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, उसके कट ऑफ क्या है, ब्रांच वाइज कट ऑफ उस कॉलेज के क्या हो सकते हैं, जो कि आपको फिर आगे जाके वो सीट मिल सकती है। इसके लिए आपको वो वेबसाइट फॉलो करनी है। तो उस पे आपको प्रीवियस ईयर के कट ऑफ लिस्ट मिल जाएंगे परसेंटाइल के हिसाब से सीईटी के। उसके बाद आपको क्या करना है कि फैसिलिटेशन सेंटर आपको ढूंढ के रखने। फैसिलिटेशन सेंटर इसलिए है कि जिस स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कैसे होगा, आगे की जो प्रोसेस है, तो वो फैसिलिटेशन सेंटर पे होती है, ठीक है। तो आपके नजदीक का जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, उसमें अगर फैसिलिटेशन सेंटर है तो वहां पे जाके आप ये प्रोसेस कर सकते हो। तो पुणे के बहुत सारे कॉलेजेस है, उसमें ये फैसिलिटेशन अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप फैसिलिटेशन सेंटर पे जाते हो, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म पे आपका आईडी और पासवर्ड जनरेट होता है, जो कि थ्रू आउट आपको एडमिशन तक लगेगा, आईडी और पासवर्ड, ठीक है ना। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि मान लो किसी डिवीजन मतलब ब्रांच में आप अप्लाई कर रहे हो, कंप्यूटर ब्रांच हो या मैकेनिकल हो या फिर सिविल या ईएनटीसी ब्रांच हो। अगर एक डिवीजन का हम बात करेंगे, एक डिवीजन जो कि 60 सीट की होती है एक इनटेक, तो 60 सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसमें 12 सीट्स होती है जो कि मैनेजमेंट के लिए अवेलेबल है। फिर 9 सीट होती है जेडब्ल्यू स्टूडेंट के लिए, 9 सीट जो कि 15% है, ठीक है। उसके बाद 27 सीट जो रहती है, जो है महाराष्ट्र स्टेट होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। फिर उसमें कैटेगरी आती है आपकी ओपन, एससी, एसटी, एनटी, ओबीसी, और उसमें फिर टीएफडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस। टीएफडब्ल्यूएस की 3 सीटें होती हैं पर डिवीजन। अगर 60 का इंटेक है तो उसमें 3 सीट आपकी टीएफडब्ल्यूएस के लिए होती है। तो टीएफडब्ल्यूएस क्या है, वो है ट्यूशन फी वेवर स्कीम। ट्यूशन फी वेवर स्कीम मतलब उसको आपको ट्यूशन फी भरनी नहीं होती है, टोटल माइनस हो जाती है 100%। मान लो 1 लाख फी है किसी कॉलेज की, और उसमें 50 to 60,000 या फिर 80,000 ओनली ट्यूशन फी है, तो वो आपकी माइनस हो जाएगी। फिर आपको सिर्फ 15 या 20,000 ही भरनी पड़ेगी। तो वो है टीएफडब्ल्यूएस, और उसका मेरिट कॉलेजेस का हाई भी जाता है, वो आपको पता होनी चाहिए। वो टीएफडब्ल्यूएस किन स्टूडेंट्स के लिए है, वो है ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। मतलब ओपन कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके फैमिली इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, वो रेंज है 8 लाख। तो 8 लाख से जिनका इनकम कम है, वो इस सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट लगेगा 8 लाख से कम के लिए। मान लो जिन स्टूडेंट्स को ये टीएफडब्ल्यूएस सीट नहीं मिलती, ठीक है, वो फिर आगे जाके ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, ठीक है ना, उसका भी सेम है, 8 लाख से कम इनकम होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो फिर वो आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि ट्यूशन फी 50% माइनस हो जाती है ईडब्ल्यूएस में, ठीक है ना। उसमें भी आपको मिलेंगे 10% ऑफ इनटेक, मतलब कि 6 सीटें फिर ईडब्ल्यूएस की होती है उसमें। तो 50%, मान लो 80% अगर ट्यूशन फी है, तो आपको सिर्फ उसके फिर 50% आपको भरनी होती है। अगर उसमें भी स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिलता, तो फिर आगे जाके आपको है ईबीसी, ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। तो ईबीसी स्कॉलरशिप कैसे होती है कि आपको फुल फी भर के एडमिशन लेना होता है कॉलेज में। मान लो 1 लाख फी है, आप फुल फी भरते हो, एडमिशन लेते हो। फिर उसके बाद आगे जाके ईबी इसका वो फिर जो फॉर्म है आपको फिलअप करना होता है ईबीसी स्कॉलरशिप का, उसमें गवर्नमेंट से फिर 50% रिटर्न होती है आपको, जो भी आप पहले भरना पड़ती है क्या सर, पहले भरना पड़ेगी क्या? यस, पहले आपको 1 लाख भर के एडमिशन पूरा लेना है कॉलेज में। और फिर 1 या 2 महीने के बाद आपको फिर ईबीसी का फॉर्म फिलअप करना होता है, और फिर वो 50% ट्यूशन फी रिटर्न मिलती है गवर्नमेंट से। सर इसके लिए मेरे पास एक सवाल है आपके लिए। अगर कॉलेज कुछ ऐसे मैनेजमेंट करते हैं क्या कि आपको ईबीसी तो मिलने वाली है, तो मेरे पास पैसे नहीं 1 लाख रुपए, तो 50,000 भर दिए, 50,000 बाद में ईबीसी आने वाली है, तो मतलब आप कट कर लो इसमें या आप ले लो, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग? इंस्टॉलमेंट प्रोसेस होती है, आप इंस्टॉलमेंट में भी फीस भर सकते हो, कॉलेजेस अभी अलाउ करते हैं। कैसे होता है कि बहुत से पेरेंट्स के पास इतनी सारी अमाउंट नहीं होती है वन टाइम पे करने के लिए,
फिर वो इंस्टॉलमेंट में भी भर सकते हैं, जैसे कि आपको परमिशन लेके फिर प्रिंसिपल के साथ कॉलेज के हो जाता है, वो भी आप भर सकते हो। ओके, इसमें एक मतलब बच्चे के लिए एक अपॉर्चुनिटी है अच्छी कि ईबीसी होने के कारण आप पहले एक इंस्टॉलमेंट भरो, दूसरे इंस्टॉलमेंट तक आपकी फीस आ जाती है मतलब ईबीसी की, और उसमें आपको फायदा हो सकता है कि वो फीस वही कॉलेज में आपको सबमिट करना पड़ेगी। हाँ, क्योंकि फिर एडमिशन के बाद जो ईबीसी की एग्जैक्टली प्रोसेस शुरू होगी, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है, फिर वो आगे जाके एडमिशन लेने के बाद। ओके, और उसके बाद में क्या करना पड़ेगा सर? और कोई और चीज? फिर आगे जाके फिर ऐसे है कि फैसिलिटेशन सेंटर पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ठीक है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म में टीएफडब्ल्यूएस का आता है यस और नो। अगर आपको टीएफडब्ल्यूएस का, मैंने जैसे अभी बताया कि इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, फिर वो अप्लाई कर सकते हैं यस करके। जिनको नहीं चाहिए वो नो करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होता है फैसिलिटेशन सेंटर पे। फिर उसके बाद आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा कैप राउंड 1 का, ये फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ। तो कैप राउंड 1 का वो लिस्ट लगेगा, उसको आपको पता चलेगा कि फिर आपका परसेंटाइल के हिसाब से मेरिट कैसे बैठ रहा है। फिर ऑप्शन फॉर्म है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन फॉर्म से क्या होता है, जो भी स्टूडेंट्स ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, इसमें मतलब स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, ऐसे देखा गया है। फिर वो सेकंड राउंड या थर्ड राउंड तक जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, आपको फर्स्ट राउंड में प्रॉपरली ऑप्शन सिलेक्ट करने। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर कॉलेजेस के कट ऑफ चेक करने, उसका फिर मेरिट कैसे जाता है ये चेक करना है, ठीक है ना। तो अभी क्या होता है कि कॉलेज का कोड होता है और ब्रांच का भी कोड होता है, ठीक है। तो जो प्रॉपर कोड आपको मिलेगा जब भी आप ऑप्शन फॉर्म भरोगे, तो एक जो नंबर होता है उस नंबर में पहले कॉलेज का कोड, उसके बाद ब्रांच का कोड, और लास्ट के दो डिजिट होते हैं वो आपको चेंजेस मिल सकते हैं। कैसे? अगर कोई कॉलेजेस में फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है, राइट, तो फर्स्ट शिफ्ट के कॉलेज के लास्ट के 2 डिजिट में होता है 10, और सेकंड शिफ्ट का अगर कॉलेज है तो उसके कोड के लास्ट में है 2 डिजिट 20। तो ये डिफरेंस है। और अगर आप टीएफडब्ल्यूएस की सीट अप्लाई करना चाह रहे हो तो टीएफडब्ल्यूएस के कोड में लास्ट का डिजिट होता है कैपिटल टी, वो टीएफडब्ल्यूएस की सीट होती है, उसको आपको टिक करना होता है। अगर आपने टीएफडब्ल्यूएस को यस करके उसको टिक किया तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। आपने अगर टीएफडब्ल्यूएस का कोड लिया ही नहीं तो वो आपको अलॉटमेंट में आएगा नहीं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप फॉर्म भरते हो ऑप्शन फॉर्म, तो प्रॉपरली कॉलेजेस की लिस्ट निकालो, फिर उस कॉलेज के ब्रांचेस की लिस्ट निकालो। एक ही कॉलेज के आप 2 या 3 ब्रांचेस सिलेक्ट कर सकते हो कोड भरते समय। उसमें फिर फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है, टीएफडब्ल्यूएस का भी कोड है। मतलब एक ब्रांच के लिए आपको 2 या 3 ऑप्शन मिल जाते हैं कोड के लिए। फिर एक कॉलेजेस की वो एक ब्रांच हो गई, फिर दूसरी ब्रांच उसके कोड्स। एक ही कॉलेजेस में आपके बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, और आपको दूसरे भी कॉलेजेस आप भर सकते हो। अभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि टॉप 10 कॉलेजेस तो ऑनलाइन पे मिल जाते हैं, लेकिन 20 कॉलेज कौन सा है, 26 कॉलेज कौन सा है, 35 पोजीशन पे कॉलेज कौन सा है जो कि बहुत बढ़िया कॉलेज होता है, ठीक है। तो इसलिए उनको पता होना चाहिए कि कॉलेजेस कौन से हैं। हमने अभी बात की कि हम एक बुक पब्लिश कर रहे हैं, उस बुक में बहुत सभी चीजें हमने ली है कि कट ऑफ लिस्ट कॉलेज के लिए है, कौन से टॉप कॉलेजेस है। पुणे रीजन के लिए हम बुक पब्लिश कर रहे हैं, वो आपको सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी भी अवेलेबल कर देंगे। फिर उसमें डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, फीस स्ट्रक्चर सब कुछ दिया है। अभी ऑप्शन फॉर्म भरने के बाद प्रोविजनल और फाइनल मेरिट लगता है फिर कैप राउंड 1 का। फिर उसको उसमें आपको कॉलेज अलॉट होता है, अलॉटमेंट, उसको हम बोलते हैं अलॉटमेंट लेटर। फिर कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद अगर उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, कंफर्म करना है, तो आपको जाना है एआरसी सेंटर। अभी 4 एआरसी सेंटर है। फर्स्ट है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, सीओईपी फेमस कॉलेज है। दूसरा है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पुणे का। तीसरा है भारतीय विद्यापीठ, और चौथा है वाडिया कॉलेज। तो ये 4 एआरसी सेंटर्स है जो आप उसमें जाके कॉलेज कंफर्म करना होता है। लेकिन जैसे अभी आप गए उस कॉलेज में आपको अगर एडमिशन लेना है, वो कंफर्म करना है, तो वो ऑप्शन होता है फ्रीज। आपको वो फ्रीज करना होता है, मतलब कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसको हम बोलते हैं सीट एक्सेप्टेंस फॉर्म। अगर आपको मान लो वो कॉलेज नहीं लेना है, ठीक है, आपको सेकंड राउंड के लिए जाना है, तो आपको वहां पे जाके करना होता है फ्लोट और स्लाइड।
फ्लोट और स्लाइड का मतलब है कि आपको रुकना है, सेकंड राउंड में फिर से ऑप्शन फॉर्म भरना है और अप्लाई करके फिर सेकंड राउंड में जाना है, तो उसके लिए है स्लाइड और फ्लोट। एक बात ध्यान में रखिए कि एडमिशन, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले एक बार तो भी ARC सेंटर आपको जाना ही है, ठीक है। और उसकी नॉमिनल फी होती है 1000 या 1500, वो आपको पे करके सीट एक्सेप्ट करनी होती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गए, दैट इज अलॉटमेंट लेटर एंड सेकंड इज आपका सीट एक्सेप्टेंस फॉर्म। सो आगे जाके फिर मैं बोलता हूँ कि अगर आप कॉलेज में गए और फिर आपको एडमिशन लेना है तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे। तो ओपन कैटेगरी के लिए डॉक्यूमेंट्स है, पहले तो बताया आपको अलॉटमेंट लेटर, सेकंड है सीट एक्सेप्टेंस फॉर्म, थर्ड है आपका CET स्कोर कार्ड या फिर JEE स्कोर कार्ड, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, लिविंग सर्टिफिकेट, नेशनलिटी एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड की जेरोक्स स्टूडेंट्स की, ठीक है। और अगर गैप सर्टिफिकेट है इफ एप्लीकेबल तो वो, ये हो गया आपका ओपन कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स। अगर स्टूडेंट SC और ST कैटेगरी के हैं तो एडिशनल डॉक्यूमेंट है कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर फिर स्टूडेंट्स है NT और OBC कैटेगरी के तो फिर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स उसके साथ होते हैं कि आपको इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो ये हो गए उसके डॉक्यूमेंट लिस्ट। तो इस डॉक्यूमेंट के आपको 2 या 3 सेट ऑफ जेरोक्स रखनी है और फोटोग्राफ जब भी आप एडमिशन लेने जाओगे। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स है। फिर कॉलेज में जाके आपको फिर से वो जो मैंने बताया कि FC सेंटर में जो आपको ID पासवर्ड मिलता है, ठीक है, तो वो आपको कंटिन्यू करना है एडमिशन प्रोसेस के लिए। अभी आपको मान लो कॉलेज की फी पता नहीं है तो एक वेबसाइट है और शिक्षण शुल्क समिति, शिक्षण शुल्क समिति के वेबसाइट के ऊपर आपको फीस भी मिल जाती है सभी कॉलेजेस की, इंटरिम फी कहा जाता है उसको, प्लस माइनस 5 to 10,000 हो जाएगा, लेकिन वहां पे आपको फीस भी पता चलेगी एडमिशन के लिए। यस सर। ओके, तो सर ने बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन दी है। मुझे लगता है कि सर ने जो जो इंफॉर्मेशन दी है आप लोगों ने एक पेन और नोटबुक लेके पूरी इंफॉर्मेशन पॉइंट टू पॉइंट लिखना चाहिए। उसके बाद में वो अपने पास डॉक्यूमेंट है ये नहीं है चेकआउट करो, उसकी एक फाइल बनाओ, उसके जेरोक्स के बंच बनाना चाहिए। और कुछ भी गाइडेंस रहा तो कमेंट में प्लीज कमेंट डालें ताकि उससे हम लोग डायरेक्टली सर से कनेक्ट कर सकते हैं। और दोबारा कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी सर का एक बार, सर और भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट को तो आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं सर, तो हम लोग दोबारा आपने इस जो फिजिक्स ज्ञान वोकेशनल जो फैमिली 55,000 की फैमिलीज है ये एक्चुअल में सर, तो सर को दोबारा इनवाइट करेंगे। और मैं चाहता हूं कि सर शायद मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू से भी कुछ बच्चे आपके साथ कनेक्ट हो जाए आपके कॉलेज के साथ, तो आपको बोलेंगे भी वहां पे कि सर आप फिजिक्स ज्ञान वोकेशनल चैनल पे इंटरव्यू दिया था और इसके कारण हम लोगों को इस कॉलेज के बारे में भी बहुत अच्छा। एक्चुअली में सर मैं एक टॉप 20 इंजीनियरिंग कॉलेज महाराष्ट्र के मैंने एक वीडियोस बनाया था, उसमें भी आपका नाम लिया था। कॉलेज का नंबर नहीं डाला मैंने कितने नंबर पे है, लेकिन टॉप 20 कॉलेज में आपके कॉलेज का सजेशन दिया और कोइंसिडेंट बोल सकते कि डायरेक्टली हमारा और आपका कांटेक्ट हो चुका है। और एक्चुअली मेरे दोस्त के दोस्त ही आप, इसका मतलब हमारे भी दोस्त हैं। हाँ। और बहुत ही अच्छा लगा सर। और कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो बिल्कुल हम आपको तकलीफ देने वाले हैं हमेशा के लिए, जो भी बच्चे को चलेगा सर, चलेगा। तो कुछ भी डॉक्यूमेंट के बारे में या कॉलेज के बारे में जो भी आपकी सहायता मिले और महाराष्ट्र के बच्चे को एक टॉप कॉलेज, अच्छा कॉलेज मिले, यही मैं उम्मीद करता हूँ। और इस इंटरव्यू को यही मैं खत्म करना चाहता हूँ। चलो थैंक यू सर। और थैंक यू वेरी मच सर। चलो ओके बाय सर।